अच्छा जी, now let's move towards the questions of transport in plants. अच्छा जी. So the first question says, explain how water moves up the xylem vessels in the trunks of trees. तो हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमारे पास जब भी हमें मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करनी है अप द xylem, so we would basically be talking about the entire cohesion tension model. जो हमारे पास पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जो ट्रांसपिरेशनल पुल बनता है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं that in this answer. It's a 4 marker answer. Let's start writing this. अच्छा जी. So सबसे पहले we would say water is lost in the form of vapor, a process known as transpiration. या हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि म्यूकोफिल सेल में हो रहा है. Water is lost in the form of vapor from the surface of mesophyll cells, a process known as transpiration. This creates a transpirational pull. This would be your second point. Causing water from the xylem in the leaf to replace the water that's lost. This results in low hydrostatic pressure. HP is basically short for low hydrostatic pressure at the top of the xylem. On the other hand, the xylem in the root has high hydrostatic pressure. This creates an overall hydrostatic pressure gradient. Water molecules move from the roots to the leaf in a continuous column due to cohesive forces between them. ठीक है? Any questions about this answer? Cavitation is the formation of air-filled spaces inside the columns of water in xylem vessels in trees. Now, what is cavitation? Let's say ये हमारे पास एक xylem vessel है. This is our xylem. And they're telling us that cavitation is the formation of air-filled spaces inside the columns of water in xylem vessels in trees. तो हमारे पास अगर वाटर मूव कर रहा है xylem में, ठीक है, और हमारे पास बीच बीच में लेट्स से एयर स्पेसेस आना शुरू हो जाएं. Let's say the areas that I haven't colored in blue, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एयर accumulate हो गई है, एयर बबल्स या एयर स्पेसेस बन गए हैं. So cavitation is simply the phenomena in which air-filled spaces or air bubbles are formed in the vessel. These air-filled spaces form more often when there are high rates of movement of water in xylem vessels. पहले उन्होंने हमें ये बताया कि cavitation क्या होती है. Cavitation is the formation of air-filled spaces in the xylem vessel.
फिर उन्होंने हमें ये बताया कि जो कैविटेशन है या जो फॉर्मेशन ऑफ एओफिल स्पीसीज है ये ज्यादा कब होती है, जब हमारे पास ज्यादा पानी जाइलम में मूव कर रहा होता है. सो ग्रेटर movement of water, greater is the formation of airfill spaces or cavitation. When an airfill space forms in a xylem vessel, a noise is made that can be detected as a click by a sensor placed close to the xylem vessels in the trunk of a tree. जब भी कोई एयर बबल या एयरफिल स्पेस बनती है तो जैसे ही वो बनती है एक क्लिक की साउंड आती है. वालेकुम अस्सलाम मुताहर. तो जैसे ही वो बेसिकली वी कवर 05 की अडेप्टेशंस एंड वी स्टार्टेड द टॉपिकल क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स. अच्छा जी. जब भी हमारे पास एयर बबल आती है, एयर बबल बनती है तो एक टक की या क्लिक की साउंड आती है. दैट क्लिक साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सेंसर. अगर हम सेंसर को जाइलम के करीब रखेंगे तो जब भी एयरफिल स्पेस बनेगी एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो साउंड हमारा सेंसर डिटेक्ट कर लेगा. Students investigated the relationship between two environmental factors and the rate of cavitation in a Scots pine tree. बच्चों ने एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उन्होंने देखा कि हमने एक स्कॉट्स पाइन ट्री को दो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रखा है ओवर अ 50-hour पीरियड. The two factors they investigated were photosynthetically active radiation, PAR, which is the light energy available to plants that they absorb and use in photosynthesis. Now, a lot of times examiner would try to overwhelm you with difficult terminologies, with difficult statements. Now, cavitation is something that you didn't know of. आप इसको पढ़ के घबरा सकते हो कि what has just come, we don't know this. जब भी वो आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास मौजूद होगी. जैसे जिसने बहुत डिटेल में आपको कैविटेशन एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया. अब दूसरी चीज जो उसको आप देख के घबरा सकते हो, ओवरवेलम हो सकते हो, वो PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. नाउ यू आर लाइक वी हैवंट स्टडीड दिस. whatever you have not studied, the examiner knows that you have not studied. तो वो आपको ओवरवेलम करने के लिए, घबराने के लिए वो चीजें देता है, बट आपने उसे घबराना नहीं है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज न्यू उसके बारे में इनफ डेटा आपको दिया हुआ होगा. और अगर इनफ डेटा नहीं दिया हुआ तो जो डेटा गिवन है आपको उसको को रिलेट करना पड़ेगा विद समथिंग दैट यू हैव स्टडीड एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. Now, if you read the statement about PAR, it is simply saying it is a light energy which is required in photosynthesis. तो simply वो यही कह देते effect of light. यहाँ पर they're just checking the effect of light on the movement of water. और दूसरी चीज है विंड स्पीड. तो एक दफा उन्होंने डिफरेंट लाइट कंडीशंस में रखा, एक दफा उन्होंने डिफरेंट विंड स्पीड में रखा. और इफेक्ट ऑफ लाइट और इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन द फ्लो ऑफ वाटर चेक किया. फ्लो ऑफ वाटर कैसे वो मेजर कर रहे थे, बाय द नंबर ऑफ टाइम्स उनको क्लिक साउंड आई होगी कैविटेशन से. कैविटेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास वाटर ज्यादा मूव कर रहा है. कैविटेशन को वो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, through हमारे पास the sounds that are being produced every time an airfill space is made. The formation of air spaces is known as cavitation, yes. Now, the cavitation rate was estimated by recording the number of clicks detected by the sensor. The results are shown in figure 3.1. Suggest the conclusions that can be made with reference to the data in figure 3.1. Before we move towards figure 3.1, a core relationship which I want you to understand over here is you guys should be able to understand कि जब भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा होगा. ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा होगा तो हमारे पास ज्यादा वाटर मूव करेगा अप द जाइलम फ्रॉम द रूट टू द लीफ. सो बेसिकली इन अदर टर्म्स वो ये भी चेक कर रहे हैं कि आपका ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है. ट्रांसपिरेशन आपका लाइट से अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, विंड स्पीड से अफेक्टेड होता है, ह्यूमिडिटी से अफेक्टेड होता है. This is something you know since O level, since even your secondary school की general science. So यहाँ पर you need to understand कि this is basically not something difficult, not something new that they're asking you. Now यहाँ पर वो लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने विंड स्पीड देखी, और इनका जो कलेक्टिव इफेक्ट है ऑफ लाइट एंड विंड स्पीड ऑन कैविटेशन रेट. कैविटेशन रेट क्या है? द अमाउंट ऑफ क्लिक्स पर मिनट. और इससे हमें क्या पता चल रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर मूव्ड अप द जाइलम. ठीक है.
नाउ अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे ज्यादा वाटर कब मूव कर रहा है, सबसे ज्यादा वाटर मूव कर रहा है हमारे पास दिन के टाइम पे। आई वॉज बेसिकली सेइंग कि हमारे पास जब भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा होगा तो ज्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर होगी अक्रॉस द जाइलम। And transpiration is affected by wind speed, light, temperature, and what do you say? Humidity. That's all right. I would upload the recording आज रात से पहले इंशाल्लाह। अच्छा जी। Now, if you see over here, हमारे पास सबसे ज्यादा जो कैविटेशन है या मूवमेंट ऑफ वाटर है, that is during daytime. Yes, Sanya? Any questions? Okay. ना हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ जाइलम हो रही है, वो कब हो रही है? वो हो रही है दिन के टाइम पर। ना हमारे पास जो विंड स्पीड है, वो विंड स्पीड क्या कहते हैं, इज बेसिकली अगेन हायर दिन के टाइम पर। और अगर हम लाइट की बात करें, लाइट हमारे पास अवेलेबली दिन के टाइम पे होती है सबसे ज्यादा, बिकॉज सनलाइट उस वक्त प्रेजेंट होती है। सो इफ यू गाइस ऑब्जर्व, क्या रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि हमारे पास जब लाइट प्रेजेंट होती है, लाइट का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है हमारे पास कैविटेशन पर। डू यू ऑल एग्री दैट लाइट इज बेसिकली अफेक्टिंग द कैविटेशन रेट द मोस्ट? क्योंकि हमारे पास देखो, इस टाइम के दौरान विंड स्पीड प्रेजेंट है। इट्स नॉट लाइक हमारे पास विंड स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई है रात के टाइम पर। विंड स्पीड इज स्टिल प्रेजेंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम एज वेल। बट इवन जब विंड स्पीड प्रेजेंट है तो हमारे पास द कैविटेशन रेट्स आर जीरो। कैन यू ऑल ऑब्जर्व दैट? कोई मुश्किल है इसको समझने में? कि अगर लाइट नहीं है, जब जब लाइट एब्सेंट है तब तब कैविटेशन रेट भी हमारा एब्सेंट हो रहा है, तब तब कैविटेशन भी जीरो हो रही है, ऑल्दो विंड प्रेजेंट है। यानी कि द लाइट इज अफेक्टिंग मोर ऑन द cavitation rate, on the movement of xylem, movement of water across the xylem. We cannot see cavitation, we are measuring cavitation. We are measuring cavitation because जब भी cavitation होगी हमारे पास एक क्लिक की साउंड प्रोड्यूस होगी। वो क्लिक की साउंड हम लोग मेजर कर रहे हैं थ्रू अ सेंसर। जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे इन अ गिवन टाइम, उतना ज्यादा कैविटेशन रेट होगा ड्यूरिंग दैट टाइम। दिस इज क्लियर? We are not seeing it, we are measuring it. Now, these are three different graphs which we are interrelating. हमारे पास देखो, हमारे पास जो कैविटेशन आ रही है, वो कैविटेशन तभी आ रही है जब लाइट प्रेजेंट है। कैन यू अप्रिशिएट दैट सनिया? ना हमारे पास अगर हम ये देखें, विंड स्पीड का इफेक्ट देखें, विंड स्पीड हमारे पास इस दौरानिए में भी प्रेजेंट है। इफ यू सी, wind speed is present during this time as well. Wind speed is present during this time as well. बट विंड स्पीड के प्रेजेंट होने से कैविटेशन इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है जितना वो लाइट की प्रेजेंस से अफेक्टेड है, बिकॉज हमारे पास इस टाइम ड्यूरेशन में लाइट प्रेजेंट नहीं है। सो द लाइट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंसिंग कैविटेशन इन कंपैरिजन टू विंड स्पीड। ओके, गुड। नाउ अब हम इसकी कंक्लूजन या सजेशंस क्या लिखेंगे? सबसे पहली कंक्लूजन जो हमें समझ आ गई है वो ये आ गई है, कैविटेशन only occurs when light energy is present. We can also say that light energy, or the PAR, affects cavitation more than the wind speed.
फर्दर मोर मैंने ट्रांसपिरेशन की भी बात की थी कि हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन है हमें उससे भी रिलेट करना है, उससे भी कोइंसाइड करना है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपिरेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो वाटर की सबसे ज्यादा नीड लीव्स को कब होती है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस अगर सबसे ज्यादा हो रही है तो हमारे पास क्या कहते हैं, वाई विंड हैज नो इफेक्ट। हमारे पास जो ग्राफ है उसमें कहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि विंड इफेक्ट का कैविटेशन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। हमारे पास इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या आपको नजर आ रहा है कोई कैविटेशन? विंड प्रेजेंट है, विंड की हमें पीक नजर आ रही है, बट क्या कैविटेशन की कोई पीक नजर आ रही है ड्यूरिंग दिस टाइम जो मैंने हाईलाइट किया है हाशम? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि लाइट हमारी एब्सेंट है। दैट इज व्हाई वी आर कंक्लूडिंग दैट लाइट हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन कैविटेशन इंस्टेड ऑफ द विंड स्पीड। और लाइट का क्यों इतना इफेक्ट है? लाइट का इसलिए इफेक्ट है बिकॉज लाइट हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। लाइट affects the rate of photosynthesis and thus more water is needed by the leaf, or you can say photosynthesizing cells, as greater movement of water and cavitation in the presence of PAR. Is this clear? Any questions? Yes, Mutahar. तनिया नहीं, एक में हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैविटेशन कब हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। बट हमारे पास क्या कहती हैं, हम उसको कंपेयर भी तो करेंगे विंड स्पीड के साथ। सो एक हमें ये बताना है, एक हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि कैविटेशन इज ओनली अकरिंग व्हेन लाइट एनर्जी इज प्रेजेंट। उससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट लाइट एनर्जी हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन कैविटेशन इन कंपैरिजन टू विंड स्पीड। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन which is leading to this conclusion. यस, आप क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो आप पॉइंट्स को यूज करके, क्या कहते हैं, ग्राफ के कुछ नंबर्स को लेके अगर आप कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हमारे पास क्या कहती हैं, जब हमारा विंड स्पीड 1.5 पे हो जाती है तो हमारे पास एनी विंड स्पीड below 1.5 is not affecting cavitation, or there is no cavitation if the wind speed is below 1.5 meter per second. ये एक ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हो। सो आप कंपैरेटिव नंबर्स अगर यूज करना चाहते हो वो एक्सेप्टेबल होता है। सो किसी भी ग्राफ में यू कैन compare the numerical values to support you, to add as an evidence to your conclusion. That is also acceptable. मैं लिख भी देती हूँ ये वाला पॉइंट, नो कैविटेशन when the wind speed is below 1.5 meter per second. Shaji, there's another discussion. The pressure of water vapor inside and outside leaves can be measured. The difference between these pressure is known as the leaf vapor pressure deficit. Now again, LVPD का टर्म आप लोगों के लिए न्यू है, आप लोगों ने कभी भी LVPD नहीं सुना, बट अगर हम फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ें, the pressure of water vapor inside and outside leaves can be measured. The difference between these pressures is known as the leaf vapor pressure deficit. In the simplest of terms, can we say that this is basically the vapor gradient inside and outside of the
leaf in the most simplest of terms? Do you all agree with this? That LVPD is basically the gradient. कि अंदर कितने वाटर वेपर है और बाहर कितने वाटर वेपर है, ठीक है. LVPD is one of the factors that influence the rate of transpiration. Obviously अभी हमने जीरो फाइट्स में भी ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर बाहर ज्यादा वाटर वेपर हो गए हैं तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा. ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो हमारे पास जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगी. Scientists measured the effect of changing the LVPD on the rate of transpiration in several species. So, flowering plants that live in a variety, scientists measured the effect of changing the LVPD on the rate of transpiration in several species of flowering plant that live in a variety of different habitats. Two of these species were Nerium oleander, a species that is adapted to grow in hot, dry conditions, and Helianthus annuus, a species that is not adapted for survival in hot, dry conditions. So ये हमारे पास वो species है, N. oleander, which is adapted for hot, dry conditions. And this is the species Helianthus annuus, which is not adapted for hot, dry conditions. ठीक है. Figure 5.1 shows the effect of increasing the LVPD on the transpiration rates of the two species. All other factors were kept constant. So we are increasing the leaf vapor pressure deficit, and we can see कि if we are increasing the leaf vapor pressure deficit तो हमारा जो rate of transpiration है वो दोनों के लिए increase हो रहा है till 2.5. 2.5 तक जब हम अपना लीफ वेपर प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों प्लांट्स का जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं. हाउएवर 2.5 के बाद अगर हम 3 पर जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास हेलियंथस एनस में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कांस्टेंट हो गया है, और जो हमारे पास नेरियम ओलियंडर है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो स्लाइड डिक्रीज आ रहा है ग्राफ में. You all agree with these observations? Any questions about understanding anything about the situation? लेकिन मिस ये जो दो पॉइंट्स है हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं. अच्छा, मैं ये जरा जूम करके दिखा देती हूँ. Now, if you see हाशिम, ये जो है ये वाली लाइन, ये मैं जरा रेड से ड्रॉ कर देती हूँ. ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाली में हल्का सा डिक्रीज है. कैन यू सी दिस? हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा डिक्लाइन है. अब क्लियर हुआ जूम करके? ये अगर मैं हटा भी दूं आप ऑब्जर्व करो, ये स्ट्रेट इस लाइन पर नहीं आ रहा. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, हल्का सा यहाँ पर देखो डेविएशन आ रही है. ठीक है, ओके. कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द टू स्पीसीज शोन इन फिगर 5.1. अब हमें क्या नजर आ रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं. दो चीजें तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं कि दोनों के हमने जब लीव वेपर प्रेशर डेफिसिट को, एलवीपीडी को इंक्रीज किया 2.5 तक तो दोनों का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज कर रहा था. हेलियांथस एनस का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा इंक्रीज कर रहा था बिकॉज द ग्रेडियंट इज स्टीपर. और हमारे पास क्या कहते हैं, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन था वो हमारे पास नेरियम ओलियंडर का इंक्रीज कर रहा था लेकिन कंपैरेटिवली कम इंक्रीज कर रहा था. सो हम ये लिख सकते हैं दैट इंक्रीजिंग द LVPD till 2.5 किलो पास्कल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उन्होंने हमारे पास यूनिट दिया हुआ है किसी भी वेरिएबल का तो आप उस यूनिट को मेंशन करो. अगर आप यूनिट को मेंशन नहीं करोगे और खाली 2.5 लिख दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ दे टोल्ड यू द यूनिट और इफ यू नो द यूनिट ऑलरेडी, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द यूनिट. इफ दे हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट द यूनिट तो आप लोग खुद ये लिख दोगे कि 2.5 यूनिट्स तक इंक्रीज कर रहा था या 2.5 आर्बिट्री यूनिट्स तक इंक्रीज कर रहा था. आप ऐसे ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट स्पेसिफाइंग द यूनिट्स नहीं लिखोगे. अगर यूनिट्स उन्होंने नहीं दिए हुए तो फिर आप अपने तौर पे 2.5 यूनिट्स लिख दोगे. या अगर आपको खुद पता है कि उसका क्या कहते हैं क्या यूनिट होना चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. बट इफ दे टोल्ड यू तो आपको फिर उसी को यूज करना पड़ेगा. So increasing the LVPD till 2.5 kilopascals caused the rate of transpiration
to increase in both species, then we would say हमारे पास किसका ज्यादा था इंक्रीज, हेलियंथस एनियस का. So HA had a greater increase in the rate than NO. फिर हमारे पास we can quote some data. या हम ये भी बात कर सकते हैं that increasing the LVPD from 2.5 to 3. No, we cannot write in bullet points in paper. We have to write in prose. ये तो मैं आपको marking points अलग अलग specify करने के लिए bullets में बता रही हूँ. But you are supposed to write in paper in continuous prose and continuous paragraphs. The only time you can write in bullet points is when they ask you to list. और या वो खुद आपको bullet points बनाकर दे दें तब आप लिख सकते हो, वरना अगर आपको lines दी हुई है so you have to write in a continuous prose. Okay, we can say that increasing the LVPD from 2.5 kilopascals to 3.0 kilopascals resulted in the rate of transpiration to remain constant for Helianthus aeneas, whereas a slight decline in rate was observed for Nerium oleander. Is this clear? Any questions about this? Yes, numerical values can earn us separate marks. Figure 5.2 shows part of a plant of Anelius oleander. तो हमारे पास इस वाले प्लांट का उन्होंने हमें नेरियम ओलियंडर, उसका हमें क्या कहते हैं एक पिक्चर दिखाई हुई है, और फिर उसका फिगर 5.3 shows a cross section of part of an oleander leaf. Figure 5.4 is a drawing of a high power view of region N on figure 5.3. State and explain two adaptations shown by the leaves of N. oleander that are visible in figure 5.3 and figure 5.4. अगर हम N. oleander की वैसे भी बात करें, N. oleander का जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है that is कम, उसके यहाँ जो ट्रांसपिरेशन हो रही है that is relatively lesser. And they also told us in the start that Nerium oleander is a species that is adapted to grow in hot dry conditions. यानी कि इसके पास जो water availability है वो कम है. There is less water present in the area where this plant, this species is growing. ठीक है? Yeah, Sankan stomata is a property, correct? तो हमारे पास this is a xerophyte. ठीक है? अभी हम xerophytes पढ़कर भी आ रहे हैं. एंड अगर आप देखो भी तो इसका जो ओवरऑल ट्रांसपिरेशन रेट था वो थ्रू आउट बहुत लेस था. और हमने और जब एलवीपीडी डिक्रीज किया तो हमारे पास जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहा, बल्कि वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया. So all of these things point towards the fact that N. oleander is a plant that is adapted to live in conditions with minimum water supply. अगर हम इसका ये भी देखें, क्रॉस सेक्शन भी देखें, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स भी नजर आ रहे होंगे जो हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं. फिर हमारे पास दिस इज व्हाट, दिस इज अ संकन, क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ये आप कह सकते हो. फिर अगर हम ये देखें हाई पावर व्यू ऑफ रीजन एन, तो हमारे पास हमें ट्राइकोम्स फर्दर क्लैरिटी के साथ नजर आ रही हैं. हाँ, हमारे पास सारे स्टोमेटा संकन नहीं होते हैं. Not all sunken stomata. Sunken stomata open जरूर होता है, इसके मतलब नहीं stomata open ही हो रहा. Xerophytes का stomata open होता है, it's not closed.
बिकॉज अगर ये क्लोज हो गया स्टोमेटा तो बिल्कुल ही गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज अगर हम उसको देखें, हमारे पास इवन जो एपिडर्मिस है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। डू यू गाइस हैव एन एएस क्लासेस सर? अच्छा। ओके। नॉर्मली कैन यू गाइस टेल मी कितने लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस होता है? लाइक हमने जब पढ़ा था एक नॉर्मल लीफ का क्रॉस सेक्शन, तो हमें कितने एपिडर्मल सेल्स की लेयर नजर आ रही होती है? Usually it's a single layer of epidermal cells, and then we have like the mesophyll cells immediately उसके बाद. Do you recall that? Yeah, exactly. Because हमारे पास एक thick layer of epidermal cell है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, तो चंदा दिस इज जीरोफाइट ना, जीरोफाइट को ऑलरेडी क्या कहते हैं अपना, उसके पास वाटर सप्लाई मिनिमल है। सो उसको हर तरह से अपनी वाटर की escape को, वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है। सो हमारे पास जब 3 लेयर्स होंगी एपिडोमस की, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। डिफ्यूजन डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ एपिडोमल सेल्स है ना, दिस इज जीरो फाइट। सो वन अडेप्टेशन दैट वी कैन राइट इज द 3 लेयर्स वाली, एंड वी कैन मेंशन ट्राइकोन। तो बहुत सारी अडेप्टेशन हैं, एक आप ऐसी मेंशन कर लो जो आपको 5.3 में नजर आ रही है, और एक आप ऐसी मेंशन करो जो आपको 5.4 में नजर आ रही है। बिकॉज वेन दे से, जब वो खुद स्पेसिफाई कर देता है ना कि आपको कितनी फिगर्स या कितनी टेबल्स यूज करनी है, तो आपको उससे स्टिक करना होता है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी यूज एक्सपेक्टेशन से। तो अगर हम 5.3 की बात करें, तो हम 5.3 से 3 लेयर्स वाली बात कर देते हैं, which is 3 layers of epidermis makes a thick layer, increasing the diffusion distance, and hence less water is lost at the surface. अगर हम 5.4 की बात करें, तो 5.4 में हमें क्लियरली ट्राइकोम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ट्राइकोम्स क्या करते हैं? ट्राइकोम्स बेसिकली दे ट्रैप वाटर वेपर। यस, होता है। यस वी कैन टोटली, हमें बस एक एक अडेप्टेशन लिखनी है। हर फिगर में आपको 2 से 3 चीजें नजर आ रही है, तो उनमें से आप कोई सी भी लिख दोगे, they'll accept it. Thereby increasing the water vapor gradient. Okay, any questions? Is this clear?